selected. So firstly concentrate on that, firstly cover that part of the syllabus and then come to rest of the part, right? So you have covered the best, the most important first, and then come to little less important, then less important, then less important, that way. It's for the exam purpose I'm saying it, otherwise we should be knowing all the things whatever is there for that particular standard. But if we have a limited time, then definitely we should know what to focus on more, because every topic does not get the same weightage, and uh, by experience we know which topic gets more weightage, and accordingly that was given as a syllabus for mock test. And then one thing that we generally lack is that writing skills. We might be knowing concepts very thoroughly, but then we have not actually sit down and write what we know. So having a practice test is very, 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 very important. In fact, you should have a target of of writing one test, at least one test of one subject per day. So that will give you exam like condition in which you are sitting there for the number of hours for that you are having the exam. It's for 3 hours. So you are sitting there for 3 hours in exam like conditions, you are just writing the paper. It's very, very important. Like I also experienced it in my IS exams also, in my other exams also, that we feel that just studying means just reading and for throughout the day we are reading and we are thinking as if everything is going inside. No, studying means smart studying means you are writing also, because ultimately in exam oriented system what you are giving in at that those 3 hours, that is going to prove. And unless we write what we know, we are not going to get marks, because examiner doesn't know what you know, he knows what you have written. So it's very important to have practice tests. When you are having the practice tests, then do manage your time well. It happens with all of us that our first answer is the best answer, and by the time we reach our last answer we are left with only 2 minutes, 3 minutes or 5 minutes. So if you know how to manage your time well, if you are sticking to the word limits, then it will help you a lot. Writing more won't help you, writing relevant will help you, and stick to whatever word limits are given. If you exceed that word limit to a great extent, it's not going to give you additional marks. You will be then losing the time available for your other questions, and ultimately in the end you will suffer. And if God forbid that condition arise that you are left with last 1-2 minutes and your one essay type question is still left, then don't keep elaborating the one point only, just all the points in bullet you must write, so that the examiner know that you actually know the answer, but because of time constraint you could not write it, you could not explain all the points. So do write all the points, that will give you more marks than only writing one point only. So these are very small things that generally we miss, especially the practice test. So do spend time on that. And then you all know what are your weak areas where you want to work more, so then concentrate on that. And then before I finish, I would again be saying those, again be referring to one movie of Shah Rukh Khan, Chak De India, and Chak De, and where he says कि ये 70 मिनट, हाँ, ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता. तो ये इसी तरह ही है, वो जो तुम्हारे 3 घंटे हैं तुमसे कोई नहीं छीन सकता. तो तुम्हें अपना, अगर हम मेरे डायरेक्टरेट में, हमारे डायरेक्टरेट का हर स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास का हर स्टूडेंट अपना बेस्ट अगर उस 3 घंटे में देगा, अपना बेस्ट जो भी उसने पढ़ाई की है और जो अभी वो 1.5 महीने में करेगा, बेस्ट पढ़ाई करेगा और बेस्ट उस 3 घंटे में देगा, तो हमारा रिजल्ट कुछ और होगा, हमारा भविष्य कुछ और होगा, आपका भविष्य कुछ और होगा. Making sense? So all of you promise that you for next 1.5 months you will be giving more than 100%? Yes? 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 That should be the spirit. And more than 100% in those 3 hours? Yes? Yes? Yes. So
Thank you so very much and God bless you. Thank you. पहले मैं 3-4 घंटे पढ़ता था, अब 7-8 घंटे। Good, clap for him. घर में बहुत अच्छा रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ पेपर में अच्छा होगा। आपने जो लास्ट लाइन बोली थी कि अगर आप अपनी कमियों को मतलब ज़्यादा गौर करोगे तो वो एक्सपैंड हो जाएंगी, वो मुझे बहुत अच्छी लगे और आई थिंक वो मेरे को हेल्प भी करेंगे आगे जाके। जब से आपने स्पीच दी है तब से मैं रोज केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और मैंने ठान रखी है कि रोज एक चैप्टर कंप्लीट करूँगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम तक केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी और मैं केमिस्ट्री में 90+ मार्क्स ला पाऊँगा। Very good. मैं अपनी क्लास में बोली थी कि अपनी कमियां को दूर करो। पहले मैंने सोचा था कि मैं 90% लाऊंगी, लेकिन आपकी बातों को सुनकर लगता है जो अपनी इतनी मेहनत करूंगी इससे मैं 95 या तो उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाऊं। और मैं मीडिया के लाइन में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ अपना बेस्ट करूंगी और 95 से भी ऊपर मार्क्स लाऊंगी। Very good. सभी बच्चे की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती। मैम सब बच्चों को स्टडी के लिए सबसे पहले क्यों प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई सबसे पहले स्टडी करो, उसके बाद आपके जो भी शौक है वो पूरे करो। मैंने तो आपको कहा ही नहीं स्टडी करनी है, जो आपका शौक है वो ही लिखो, लेकिन आज का मेरे टॉक का फोकस बोर्ड एग्जाम्स थे, दैट्स व्हाई आई हैव फोकस्ड ऑन दैट। बट जो भी आपका शौक है, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो, राइट दैट आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिंगर, राइट। एंड लेकिन कुछ बनने के लिए भी उसके जो स्टेप्स है वो तो आपको करने पड़ेंगे ना। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना, कि अगर आप मान लो जो भी बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, चलो मैं आपसे नहीं पूछूंगी, आप सिंगर बनना चाहते हो मान लीजिए, तो सिंगर बनने का एक टारगेट हो गया, मैं वर्ल्ड क्लास सिंगर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं फिल्मों में गाना चाहता हूँ, मैं क्लासिकल सिंगर बनना चाहता हूँ, वट एवर हूसोएवर इज योर रोल मॉडल, जिसके बेसिस पे आप देख रहे हो उसको आपने रखा, देन वाई, क्यों बनना चाहते हो, उसके आपके अपने रीजंस होंगे, वो लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद हाउ टू डू इट, कुछ तो स्टेप्स, बेबी स्टेप्स, कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना। सिर्फ हम सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, सोचना भी ज़रूरी है ना। वर्क एज इफ नो प्रे इज गोइंग टू हेल्प एंड प्रे एज इफ नो वर्क इज गोइंग टू हेल्प, सो दैट वे। तो आप सोचेंगे कि आप क्या क्या किस तरीके से उसको करेंगे, ठीक है। सिंगर बनने के लिए आपको क्या 12th के बाद कॉलेज में म्यूज़िक में एडमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए क्या 12th ज़रूरी है, 12th में अच्छे नंबर लेना, हो सकता है हाँ, ठीक है। क्या आपको कोई और सर्टिफिकेट कोई कोर्स करना पड़ेगा, हाँ, तो उसके लिए मेरे को क्या स्टेप्स लेने हैं वो, ठीक है। और फिर आप अगले दिन वैसे ही उसको इमेजिन करेंगे और उसके बाद उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यू कैन अप्लाई इट टू एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग दैट यू वांट, इफ यू वांट टू बिकम एन एक्टर देन ऑल्सो, बिकॉज मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, मेहनत तो करनी है, लेकिन जब आप अपने गोल के लिए मेहनत करते हो तो यू डोंट फील लाइक दैट यू आर वर्किंग, इट बिकम्स लाइक you are enjoying the process because you know why you are doing it. It's not that somebody else is asking you to do it. We actually don't like doing something when others are telling us to do, but once it becomes like हमें क्यों अच्छा लगता है खेलना, क्योंकि वो हमारे अंदर से आ रही है चीज़ कि हमें खेलना है या हमें मूवी देखनी है या भी हमें फ्रेंड्स से बात करनी है, लेकिन पढ़ना है वो कहाँ से आ रहा है, पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है कि बच्चे पढ़ लो, अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जो भी है। जब वो आपके अंदर से आएगी वो चीज़, तो उसका करने का मज़ा कुछ और होगा। तो पर्पज़ यही है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप बहुत पैसे कमाना चाहते हो, दैट्स नॉट अ बैड टारगेट। कीप अ टारगेट फॉर यू कि आई वांट टू अर्न दिस मच सैलरी पर मंथ, ठीक है। हैव अ टारगेट कि मैं भैया पहली जॉब मेरी 1 लाख पर मंथ की लगनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड टारगेट, वेरी गुड। वाई, दैट इज ऑल्सो क्लियर। मैं अपनी 4 महीने की सैलरी जोड़ के गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, इतने महीने की सैलरी जोड़ के घर खरीदना चाहता हूँ, वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। देन बट हाउ टू डू इट, 1 लाख की सैलरी पर मंथ लगने के लिए क्या मुझे करना होगा, स्पेसिफाई दैट एंड देन वर्क फॉर दैट। आज हम सिर्फ 12th के एग्जाम्स की बात कर रहे थे, वो फोकस से बात कर रहे थे, तो मैंने उसी की बात की, बट आई स्टार्टेड विद गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ माई क्लियरिंग IAS एग्जाम्स एंड some of my friends being better than me, but I getting through. So I think some way, somewhere my strategy might have helped me. So that's why I wanted to share it with all of you. Work, if it works, do it. If does not work, find something better than it, improve it, share your strategy. Yes, one thing I forgot to say, please record it also, that
4 months later, 4 years later, or 40 years later. Whenever you feel like sharing your story with me, do write to me, write my email ID, and then just mention about today's date, that we interacted on that day, or if you are listening to my video, that I listened to your video and it made me do something for which I am here today doing this. So I would be very happy to know it. I would feel really blessed to know it. It's PS, P for Padmini, S for Singla, PSTO2, PSTO2, फिर P Singla, SINGLA, ps2psingla@gmail.com. Enough. Thank you. मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम पहले जब मैं सैम्पल पेपर स्टूडेंट सॉल्व नहीं करता था तो मैम हर बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैम एग्ज़ाम आते हुए भी मैम छूट जाता था, लेकिन मैम इस बार जैसे मैं सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहा हूँ तो मैम मेरी एग्ज़ाम पूरा होने के बाद भी मैम 15 मिनट या आधा घंटा बच ही जाता है। तो आप पूरा पेपर कर पा रहे हैं उसके बाद? हाँ, ओके। तो मैम उसमें रिवाइज भी हो जाता, तो मैम मेरी स्कोर करने की ज़्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम एक्चुअली आई वांट टू बिकम अ सिंगर, बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते, तो मैम मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बनाऊँ कि मतलब मैं सिंगर बनना चाहती हूँ? वो चाहते हैं मैं बस स्टडी करूँ, वो नहीं चाहते कि मैं इस लाइन में बनूँ। लेट मी टेल यू, पढ़ाई तो देखो बेटा करनी ही पड़ेगी, मतलब इन द सेंस कि एक मिनिमम लेवल तो हमें करना ही होता है। आप 12th कर रहे हो तो 12th तो अच्छे से करनी है, बट देन कीप योर टारगेट्स, सीक्रेटली कीप विशिंग व्हाट यू वांट टू विश। एज आई वाज सेइंग यू, इफ यू रियली वांट टू बिकम सिंगर, अगर आप दिल से सिंगर बनना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स आपको सिंगर बनने से नहीं रोक सकते, बिकॉज situations will actually turn around the way that you will become singers. तो उनको बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है? You cannot change anybody in the world. उनको बिल्कुल बनाने की कोशिश नहीं करनी है। जो मैंने कहा है आप उस तरीके से करते रहो, ठीक है? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी चेंज लगेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स एग्री ना करें, वो नहीं माने, आपकी शादी जिस घर में हो वहाँ पर बड़ा ही सिंगिंग का माहौल हो, ठीक है? तो आप अपने अंदर की इच्छा को मत मरने दो, ठीक है? और आपको उनको चेंज करना, नहीं मुझे बनना है, नहीं मुझे ये करना है, उतना भी इमीडिएटली करने की जरूरत है। जब आपके हाउस में जिस समय आपको लगे कि नहीं, नाउ इट्स अ टाइम टू एक्चुअली रिबेल, बिकॉज दिस इज द अपॉर्चुनिटी आई एम गेटिंग। बिकॉज पेरेंट्स का भी नजरिया मैं अपने आप में गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जनरली पेरेंट्स को लगता है कि सिंगर्स को शायद वो एक करियर नहीं बना पाएगी जितना वो पढ़ के अपना करियर बना पाएगी। बट अगर आपके अंदर वो सिंगर बनने की इच्छा है तो आप उसको जगा के रखो, और कभी ना कभी जब राइट अपॉर्चुनिटी आपकी राइट प्रिपरेशन से मिलेगी तब अपने आप सिंगर बन जाओगे, एंड देन योर पेरेंट्स विल फील प्राउड दैट कि हमारी बेटी बन गई सिंगर। तो इसलिए उस चीज को मरने मत दो, एंड यू विल फील द डिफरेंस। इट्स लाइक अ मैजिक, बिकॉज लेट मी टेल यू, माय पेरेंट्स actually never forced me to do anything. At the same time didn't ask me not to do what I am doing, but at the same time never told me that you become this, that, whatever. But then it's your inside this thing, and then you keep pursuing, and then you become. Sometimes you will get all the support, sometimes you may not get, but don't deviate from your goal. That thing should be there, burning inside. जब सही वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो अपने आप बन जाओगे, याद रखना। सोनाक्षी मैम ने एक शो में कहा था कि सफलता इतनी खामोशी में करो कि मेहनत शोर मचा दे। यस, तो मैं उसी को अपनी लाइफ में लागू करना चाहती हूँ, और मेरे पापा दिल्ली पुलिस में FC है, तो मैं अपने पापा से